So today's topic is asexual fruiting bodies of fungi. Okay, asexual fruiting body of fungi. So there are basically 5 types of asexual fruiting bodies. So number 1 is Cinemata. Second one is Sporodocia or Sporodocia. Third one is Acervuli. Fourth one is Pycnidia. Pycnidium. Fifth one is Sorus. Okay, so we will discuss each topic in this video. So let's see first one, that is Cinemata. So first one is Cinemata, or in singular form it is known as cinema. It is its singular form. Okay, both you can say cinema और cinemata. So अब हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर देखते हैं. तो सिनेमाटा जो होता है दैट इज अरेंज्ड इन अ feather like structure. Okay, so basically it is known as मतलब it looks like a duster kind of thing or a feather duster. Okay, so diagram के थ्रू समझते हैं इसको. So it is arrangement of loosely it is arranged like you can see this is a mycelium, fungal mycelium. Okay, this is loose arrangement of fungal mycelium, and on top of it is conidiophores. Okay, it is round structures. Numerous conidia or conidiophores are present over this structure. So you can see that this looks like resembles like a feather duster. Okay, and this structure is known as cinemata. Okay, now इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके स्ट्रक्चर को पहचानने का, इसमें एक ये इट इज़ फर्स्ट वन इज इट इज़ लूज अरेंजमेंट ऑफ mycelium in a feather like structure. Okay, this is its first characteristics. Now second characteristic is the conidia is formed on the apex of the structure. अंडरस्टैंड. अब इसका एपेक्स ऑफ द स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? माइसीलिया यहाँ पे अरेंज है, ठीक है. इस माइसीलिया के टॉप पे ये कोनिडियोफोर्स है, एपेक्स पे मतलब टिप पे. आप इसको फेदर लाइक, ब्रूम लाइक जो भी स्ट्रक्चर समझें, बस इसका ये डिफ्रेंशिएट है बाकी फ्रूटिंग बॉडी से, दैट इसमें कोनिडिया आर formed at the apex of the structure. Okay, ठीक है. और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? this arrangement is called as corymmium.
Corymbium. Okay, this structure is known as corymbium. This whole structure means arrangement of conidias in a feather-like structure is called as corymbium. Okay, and this style of fruiting body of fungi is known as cinemata or cinemia. Okay, so second type of fruiting body is Sporodochium. Or its plural form is Sporodochia. Okay, Sporodochium और Sporodochia. Okay, अब इसमें क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन है कि this is a fruiting body which is peculiar characteristics of Fusarium. Fusarium फंगस का एक peculiar characteristics है, that is formation of Sporodochium fruiting body. Okay, अब इसमें किस टाइप का माइसीलियम हाइफा का अरेंजमेंट होता है ये हम देखते हैं. तो इसमें क्या है, इसका अरेंजमेंट पहले हम देखते हैं डायग्राम से. तो ये कुशन शेप में अरेंज्ड होता है. ठीक है, देखिए दिस इज होस्ट सेल एंड माइसीलियम. ठीक है, देखिए इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है इस पे. सो ओके, देखिए इस पे कोनिडियाज का अरेंजमेंट हम देखते हैं. दिस इज कोनिडियल अरेंजमेंट. ओके, अब हम देखते हैं इनका स्पेसिफिकेशंस क्या होता है इस टाइप में. तो इनका पहला फीचर होता है कि कुशन शेप्ड एग्रीगेशन ऑफ हाइफा. ओके, देखिए दिस स्ट्रक्चर ना, कुशनिंग मीन्स देर आर वेरियस लेयर्स. ओके, लेयर्स ऑफ होस्ट सेल. इसके ऊपर से ये इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं विच लुक्स लाइक कुशन टाइप. ओके, सो कुशन शेप्ड एग्रीगेशन ऑफ हाइफा. ओके, अब हम इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. इट ब्रेक्स थ्रू the host surface and bears conidiophores. मतलब समझ में आ रहा है, होस्ट सेल को ब्रेक करता है. अब ये कोनिडियोफोर बनाया, इसके ऊपर ये कोनिडिया का अरेंजमेंट हुआ. ओके, ये दो इसके पिक्यूलियर कैरेक्टर्स हैं. और ये फिजेरियम जीनस में इस टाइप का फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो थर्ड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी इज acervulus. Okay, acervulus or plural form is acervuli. Okay, अब हम इसको देखते हैं. This structure is actually very similar to Sporodochium. Okay, but इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है. तो पहले हम उस डायग्राम को देखते हैं. अब एक जो मेजर डिफरेंस होता है इसमें कि जो हमारा स्पोरोडोकियम था इट वाज ऑन लीनियर टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, इसमें क्या होता है, इट इज स्लाइटली कर्व्ड. अब हम डायग्राम देखते हैं. देखिए, एंड इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट
कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ओके, स्पोरोडोकियम के केस में क्या था, इट वॉज लूजली अरेंज्ड। ओके, इसके केस में क्या है, स्लाइटली ये डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर होता है और वेरी टाइटली अरेंज्ड। ओके, अब देखिए इसमें एक और डिफरेंस होता है, दैट इज बीच in between the conidiophores there is a structure formed and that structure is known as seta. Okay, this is seta. हम इसकी लेबलिंग करते हैं, देखिए। सो दिस इज conidiophore, this is conidia and this is setae. दिस स्ट्रक्चर, ये एक मेजर डिफरेंस है स्पोरोडोकियम में और एसरविलस में। फर्स्ट वन इज दिस स्ट्रक्चर इज स्लाइटली डिप्रेस्ड, presence of seta which was not there in sporodokium and it is tightly arranged. Okay, अब हम इसके फीचर्स को एक एक करके देखते हैं। सो द फर्स्ट फीचर इज डिप्रेस्ड mass of aggregated hypha bearing conidiophores okay, and second one is presence of long pointed dark colored structure and that structure is known as setae. It is written in italic form, so always it is underlined. Okay, ये होस्ट के सरफेस पे होता है, ठीक है। और इसका एक और कैरेक्टर है, दिस एशरविलस इज प्रेजेंट ऑन क्यूटिकल और एपिडर्मिस, और जब ये मैच्योर होता है तो इट्स इरप्शन टेक्स प्लेस। ओके, फिर ये सरफेस के बाहर निकल जाता है। ओके, इतना इसका एग्जाम्पल क्या है, ये मोस्टली जो है कोलेडोट्राइकम स्पीशीज में होता है, कोलेडोट्राइकम स्पीशीज में होता है, ठीक है। और ये ड्यूट्रोमाइकोटा सब डिवीजन में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। सो ये एसरविलस का था। अब हम लोग फोर्थ वन देखते हैं, ठीक है। सो द फोर्थ वन इज पिक्निडिया और पिक्निडियम। ठीक है, अब ये पिक्निडियम में ये पिक्निडिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये इट इज़ अ hollow structure, hollow flask like structure। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके इनर वॉल्स में कोनिडियोफोर्स होते हैं and it has narrow mouth। okay, these are conidia। ठीक है, अब
देखिए इनका जो नैरो माउथ होता है, दिस माउथ इज नोन एज ओस्टियोल, ओस्टियोल, ठीक है। दिस माउथ, नैरो माउथ इज नोन एज ओस्टियोल, ठीक है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ pseudoparenchymatous cells, pseudoparenchymatous cells, ठीक है। pseudoparenchymatous cells के बने हुए होते हैं। और इनर वॉल जो है पेरिडियम कहलाता है। दिस होल वॉल इज नोन एज पेरिडियम, ओके। अब इसमें क्या होता है, इसके इनर वॉल्स पे कोनिडियोफोर्स आर अरेंज्ड एंड on top of conidiophore conidias are present. So these are conidiophores and these are conidia, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको दिस इज नोन एज, यू कैन से इट एज फ्लास्क शेप्ड और ग्लोबोस फ्रूटिंग बॉडी with a narrow mouth, okay. So this is narrow mouth known as ostiole, understand, ठीक है। समझ में आया? इसका शेप इसमें ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं। मेजर जो द मेजर टू वर that confusing one were conidiophore, Sporodochium and Acervillus, okay. This is pycnidium, okay. Pycnidium means it is flask shaped structure made up of pseudoparenchymatous cells and with a narrow mouth, and conidiophores are arranged on the inner walls of the pycnidia, and on top of it conidias are present, okay. So thank you for watching this video.